تم نے یہ ویڈیو شاید بس یوں ہی کھول دی ہو، لیکن تمہارے رب نے تو اسے تمہارے دل کے حال کے مطابق چنا ہے، کیونکہ جب انسان تھک جاتا ہے تو رب اسے خود بلاتا ہے، کبھی کسی دعا کے جواب میں اور کبھی کسی خاموش آہ کے بعد۔ یہ ویڈیو، یہ آواز بس وہی بلاوا ہے۔ شاید اللہ تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے، تو سنو دل سے۔ اور اگر تم واقعی تھک چکے ہو، اگر تمہارے دل میں بھی وہی سوال اکثر گونجتا ہے، یا اللہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی، تو پھر بس یہ چند لمحے اپنے دل کو اس ویڈیو کے حوالے کر دو، کیونکہ آج ہم صرف الفاظ نہیں سنیں گے، بلکہ وہ راز کھولیں گے جو اللہ کبھی کبھی آزمائش کے پردے میں چھپا دیتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہو جب تمہارا دل اس جواب کو چھو لے جس کی تمہیں برسوں سے تلاش تھی، کیونکہ تمہاری آزمائش ختم ہونے سے پہلے اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو کہ سب بدل جائے، لیکن بدلے بنا ہی وقت گزرتا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، لیکن کیا تم نے کبھی دل سے خود سے پوچھا ہے صبر ہوتا کیا ہے؟ جب تم وہی درد بار بار جیتے ہو، جب ہر رات تمہاری دعاؤں کا جواب صرف خاموشی ہو، جب تم سجدے میں رو کر بھی واپس وہی ٹوٹا ہوا دل لے کر اٹھو، تو صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ رب پر یقین رکھنا ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی جب کوئی امید نظر نہ آئے۔ آج ہم ایک ایسے سفر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم آزمائش کو صرف ایک تکلیف نہیں بلکہ ایک راز کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ راز جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو خاموشی سے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ کبھی کبھی آزمائش میں ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں، لوگ، خواب، سکون، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا بھی ملتا ہے جو دنیا کے ہر خزانے سے قیمتی ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنی کسی آزمائش میں اللہ کو واقعی قریب سے محسوس کیا ہے؟ وہ لمحہ جب دنیا نے ساتھ چھوڑا اور دل نے صرف اللہ کو پکارا، وہی لمحہ تمہیں رب کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کچھ دعائیں پوری ہونے سے پہلے تمہیں کتنا مضبوط بننا پڑتا ہے۔ تمہاری آزمائش تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے کچھ خاص چھپا رکھا ہے۔ اور شاید تمہاری دعا قبول ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہارا رشتہ اللہ سے ویسا بن جائے جیسا اسے تم سے چاہیے۔ تو آج تم صرف ویڈیو مت دیکھو، بلکہ دل سے سنو اور خود سے پوچھو، کیا میری آزمائش میرے رب کی طرف سے ایک موقع ہے؟ کبھی کبھی آزمائش کا وقت صرف ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال کا نہیں ہوتا، کبھی یہ وقت برسوں پر پھیل جاتا ہے، اور تب وہ سوال جو تم صرف اپنے دل میں دہراتے ہو وہ اور تیز ہو جاتا ہے، یا اللہ کتنا اور؟ تم روتے نہیں، نا شکوہ کرتے ہو، لیکن تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایک خاموش تھکن آ جاتی ہے۔ تم وہ سب کچھ کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، نماز، دعا، صبر، شکر، مگر بدلے میں کچھ بھی نہیں بدلتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آزمائش نے تمہاری روح کو پکڑ رکھا ہو۔ زندگی چل تو رہی ہے، لیکن جیسے اندر کوئی چیز جم سی گئی ہو۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس آزمائش کی جو جلدی ختم نہیں ہوتی، اور اس صبر کی جو الفاظ سے نہیں خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ ایسا صبر جس میں تم بولتے نہیں، بس رب کی طرف دیکھتے رہتے ہو اور اندر ہی اندر کہتے ہو، یا اللہ مجھے تجھ پر اب بھی یقین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں صبر کا سب سے پہلا سبقہ ایک ماں کو دیا گیا تھا، اور وہ ماں کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوچئے، ایک ماں کو یہ حکم ملے وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، نہ کوئی یقین، نہ کوئی انجام معلوم، بس اللہ کی رضا۔ کتنا بڑا صبر تھا یہ! کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ لیکن اس عورت نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ایک چیز ڈال دی تھی، صبر کے بدلے یقین، اور وہی یقین بعد میں اس بیٹے کو واپس لے آیا، محل کے اندر سے، ماں کی گود میں۔ تمہاری آزمائش شاید ایسی ہی ہو جس میں تمہیں کچھ چھوڑنا پڑا ہو، کسی کو بھلا دینا پڑا ہو،
या अपने ही दिल को किसी अंधेरे में तन्हा छोड़ना पड़ा हो। मगर याद रखो, जब अल्लाह किसी से कुछ लेता है तो वो किसी बड़ी हिकमत का दरवाजा खोल रहा होता है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा सब्र रायगां जा रहा है, कि तुमने खुद को रोक रखा मगर किसी को फर्क नहीं पड़ा, या तुमने अपनी दुआओं में रो रो के रातें काट दी मगर आसमान से कोई जवाब ना आया? तो सुनो, आसमान का सुकूत अल्लाह की खामोश हिकमत होती है, और अक्सर अल्लाह हमें सिर्फ इतना कुछ देता है जितना हमें करीब रखने के लिए काफी हो। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने सब छोड़ दिया, खुद को बदला, अल्लाह के करीब हुआ, मगर बदले में मिला क्या? यह सवाल दुनिया के हिसाब से जायज है, मगर आखिरत के एतबार से यह सवाल नहीं बनता। क्योंकि अगर तुम अल्लाह के लिए रोए, अल्लाह के लिए कुछ छोड़ा, अल्लाह के लिए सब्र किया, तो अल्लाह कभी तुम्हें खाली नहीं छोड़ेगा, ना इस दुनिया में और ना उस दुनिया में जहां सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। अल्लाह कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन क्या हम वाकई चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ हो, या हम चाहते हैं कि सिर्फ उसकी दी हुई चीजें हमारे साथ हों? ये वो लम्हा है जहां आजमाइश ईमान की सच्चाई को खोलती है, और तब इंसान खुद को देखता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है या सिर्फ उसकी नेमतों से। आज आप जिस आजमाइश में हैं, शायद वो खत्म होने वाली नहीं, शायद वो कुछ और अरसा रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ा रहा तो वो आजमाइश तुम्हें खत्म नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें बुलंद करेगी। कभी कभी सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता, सब्र वो खामोश इबादत होती है जो इंसान को बंदगी की सबसे ऊंची जगह पर ले जाती है। और क्या आप जानते हैं, अल्लाह ने कुरान में सब्र करने वालों की सिफात बताई है और फरमाया कि कयामत के दिन वो उन्हें उनके अज्र के बिना हिसाब देगा। यानी तुम जो आज खामोश होकर जी रहे हो, जो जख्म सहकर अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ रहे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। आज नहीं तो कल तुम्हारा रब तुम्हें वो देगा जो किसी और को नहीं दिया जाता। तो शायद ये वीडियो भी तुम्हारे रब का एक खामोश जवाब है कि वो तुम्हें देख रहा है और तुम्हें वो मुकाम देने वाला है जिसके लिए तुम तैयार हो। जब हालात बदले ना, तो अल्लाह से ताल्लुक कैसे बदलता है। कभी कभी इंसान दिल से तौबा करता है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ता है, दुआएं मांगता है, और फिर हैरत में डूब जाता है। या अल्लाह, अब तो मैं तेरा हो चुका हूं, फिर भी हालात वैसे के वैसे क्यों हैं? इतने सजदों के बाद भी इतना सुकून क्यों नहीं? इतनी दुआओं के बाद भी सब कुछ आसान क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल दिल की गहराई से निकलता है, और हर उस शख्स का होता है जिसने दुनिया से कट कर रब से रिश्ता जोड़ा हो। कुछ आजमाइशें दुआ मांगने से खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह के करीब ले जाने के लिए जारी रखी जाती हैं। क्योंकि कुछ जख्म सिर्फ शिफा के लिए नहीं होते, वो निशानी होते हैं इस बात की कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ ऐसा अता करने के लिए जो आम लोगों को नहीं दिया जाता। हजरत अय्यूब का वाकया यही सिखाता है। एक नबी जिन्हें अल्लाह ने माल, सेहत, खानदान, इज्जत सब अता किया था, फिर अचानक हर शय छीन ली गई। जिस्म पर जख्म, दिल पर सदमे, तन्हाई, बीमारी, महरूमी, हर दरवाजा बंद, हर तरफ खामोशी। लेकिन हजरत अय्यूब की जबान से कभी शिकायत नहीं निकली। सिर्फ एक जुमला जो उनके रब को इतना पसंद आया कि कुरान में हमेशा के लिए लिख दिया गया, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। न शिकवा, न गिला, न बेसब्री, बस एक नरम सी अर्जी, एक सादा सा एतराफ, और अल्लाह की रहमत टूट कर बरसी। जब कोई अल्लाह से ऐसा रिश्ता बना लेता है कि शिकवे की जगह सिर्फ खामोशी होती है, तो फिर उस खामोशी में ऐसी रूहानी ताकतें जन्म लेती हैं जिन्हें अल्फाज बयान नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, जब तुम अल्लाह से लिपट कर रोए और फिर भी कोई फर्ज ना आया, लेकिन दिल को सुकून मिल गया? तो समझ लेना, अल्लाह तुम्हें जाहिरी आसानी से ज्यादा अंदरूनी ताकत अता कर रहा है। कभी कभी अल्लाह किसी की जिंदगी से वो सब कुछ छीन लेता है जिस पर उसका दिल लगा होता है, ताकि वो शख्स सिर्फ रब से लग जाए। फिर जब वो सजदे में सिर्फ ये कह दे, या अल्लाह, बस तू काफी है, तो समझो वो कामयाब हो गया।
क्योंकि असल आजमाइश ये नहीं कि तुम पर क्या बीती, बल्कि ये है कि तुम उसके बाद किसके हो गए। और जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनके जिक्र को जमीन पर नहीं आसमानों पर बुलंद करता है। क्या तुम जानते हो, जब एक बंदा हर हाल में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी फरिश्तों के मजमे में उसका जिक्र फरमाता है। क्या तुमने कभी तसव्वुर किया है कि तुम्हारे सजदों की बात आसमानों पर हो रही हो, तुम्हारे सब्र की तारीफ फरिश्ते सुन रहे हो? ये उस शख्स का मकाम है जो हालात से नहीं, रब से जुड़ा रहता है। कभी कभी लगता है जैसे हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे, कि जैसे बस अब और हिम्मत नहीं रही। लेकिन उसी लम्हे कोई बहुत खामोशी से हमारे दिल के अंदर एक तसल्ली सी रख देता है। हम समझते हैं हम खुद से संभल रहे हैं, मगर दरअसल वो अल्लाह होता है जो हमें थाम लेता है। आजमाइशों में सबसे बड़ा इनाम यही होता है कि दिल अल्लाह से जुड़ने लगता है और अल्लाह दिल को ऐसी बातें समझाने लगता है जो कोई इंसान नहीं समझा सकता। कभी दुआ के लफ्ज नहीं निकलते, बस एक आह होती है, एक खामोशी, और वही खामोशी रब के अर्श तक पहुंच जाती है। वहां कोई और नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा रब होता है और तुम उसके बहुत करीब हो जाते हो। आजमाइश दरअसल एक दावत होती है, अल्लाह की तरफ पलट आने की दावत, अपने नफ्स को छोड़कर उसकी रहमत में पनाह लेने की दावत। और जो लोग इस दावत को कबूल कर लेते हैं वो दुनिया के सबसे कीमती राज्य से वाकिफ हो जाते हैं कि अल्लाह काफी है, सिर्फ अल्लाह काफी है। तुम्हारी दुआएं अगर अभी तक पूरी नहीं हुई तो समझो अल्लाह खुद तुम्हें तैयार कर रहा है कि जब वो अता करे तो तुम्हारा जर्फ, तुम्हारा दिल उस अता को संभाल सके। तुम तन्हा नहीं हो। अगर तुम्हारी रातें तन्हाई में गुजरती हैं तो जान लो कोई है जो इन रातों को देख रहा है और तुम्हारी हर आह को लिख रहा है। और फिर वो एक वक्त आता है जब आजमाइश खत्म नहीं होती, मगर दिल को उस आजमाइश से खौफ नहीं रहता, क्योंकि दिल जानता है कि रब साथ है और वही काफी है। तो अब खुद से सवाल करो, क्या मेरी आजमाइश मेरा असल मुकाम तय करने का जरिया है? कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, या अल्लाह मुझे सिर्फ तेरा होना है। या अल्लाह जिनकी आजमाइश बहुत लंबी हो गई है उनके लिए आसानी लिख दे। जिनका दिल किसी सब्र में उलझा हुआ है उनके लिए सुकून उतार दे। और जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उनके लिए अपनी मदद का वो दरवाजा खोल दे जिसका वहम भी ना था। ए अल्लाह, हमने बहुत रोका खुद को, हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब तो हमें थाम ले। हमें वो सब दे दे जो तेरे करीब ले जाए और हम तुझसे कभी दूर ना हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।